Right. So today we'll learn the indirect function, right? And also we'll learn all the lookup functions in Excel. Right? So before starting, let's get started with a lookup function, that is match. Let's see how we can use match in Excel. So here we have some data set. I'll just copy this data set somewhere else. हमने इस data set को copy किया and in new sheet I just pasted here. My requirement is to know the position of index of certain value, right? Suppose हमने यहाँ पे pick किया and I just wanted to know the column index of order amount, right? मुझे इसका पोजीशन जो ये रेंज है, इस रेंज में इसका पोजीशन मुझे पता करना है कि ये कहाँ पे है या फिर कोई सर्टेन वैल्यू है, उसका पोजीशन हमें पता करना है कि कहाँ पे है. सो फॉर दैट वी यूज मैच फंक्शन. लेट्स सी द इंडेक्स सिंटेक्स ऑफ मैच फंक्शन. मैच देन जैसे हम मैच यहाँ पे लिखते हैं, returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in a specified order. Means that एक array है, this is your range, or we can say this is array, and in this array if we'll have to know the position of certain items, suppose sales person का हमें position जानना हो, then we use match function, and match function will return the relative position in this array of this value, right? अभी इस केस में we are interested to know the position of order amount. So for that here I'll use match function. Match, then syntax of match function in match, it takes lookup value. So for us lookup value is this one. Then next value is lookup array. So for us lookup array is this entire data set. Then next, that is match type. So here we are interested to get the only exact match, and then I'll just pass here and that's it. Right, now we are done. अब इस डेटा सेट में हम देख सकते हैं कि इसका पोजीशन क्या है. आई जस्ट सेलेक्ट दिस and 1 2 3 4 and 5th, its index is 5th. So in this way here we can get the column index of an item. Similarly यदि हमें किसी अदर वैल्यू है उसका कॉलम इंडेक्स निकालना हो, हमने यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट के जगह पे सेल्स पर्सन डाल दिया. सो हियर इट डायनामिकली गिव्स अस द column index of certain item. Now my requirement is to get the row index of certain value. हमने यहाँ पे एक order ID लिया. Now I just wanted to position of this value in this array, right? So for that again also I'll use here match function. Match, syntax of match function is it takes a lookup value, यानी कि जिसका भी हमें relative position देखना है एक रेंज के अंदर, एक एरे के अंदर, विल पास दैट एज ए लुकअप वैल्यू. देन नेक्स्ट वुड बी द लुकअप एरे, यानी कि जिस रेंज या जिस एरे के अंदर हमें ये जो सर्टेन वैल्यू है उसका पोजीशन देखना है, आई जस्ट पास दैट इंटायर कॉलम और रो एज ए lookup array, right? Then I'll press again F4 here. Then next exact match. Here I'm interested to get the exact match. जो different match type है, here we can see that finds the largest value that is less than or equal to lookup value. So इस टाइप का जो वैल्यू है, राइट, जब हमें अप्रॉक्स करना हो या न्यूमेरिकल वैल्यू सर्च कर रहे हो, इन दैट केस वी कैन यूज दिस ऑप्शन 1 और -1 वैल्यू, राइट. बट फॉर एग्जैक्ट मैच वी ऑलवेज यूज 0. अब ये जो फॉर्मूला है, दिस विल रिटर्न अस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस order ID. I just entered here. Now here we can see that this it has returned 13. Similarly यदि हम इसमें order ID कोई और चेंज करते हैं, then this will return the relative position of this order ID accordingly. So this is at 4th position from top, and here we can see that this is the at 4th position. So using match function we can
extract or get relative position of any value in array. Either we can get the row index of that item or column index of that certain item. So in this way, we can use match function. Now let's move to next part. Here we have some order ID, and my requirement is to get the value against this. I'll just go here, then I'll remove the duplicate from here. Duplicate is removed. There were only one duplicate. अब ये जो सारे order ID हैं, इसके against हमें ये salesperson, right? Salesperson, order date, country, and order amount. Our requirement is to get these information using a lookup function, right? So for that, in Excel, we have a lookup function that is VLOOKUP, vertical lookup. Syntax of VLOOKUP is VLOOKUP, and here you can see that looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row for a column you specify. By default, the table must be sorted in ascending order. That's different thing. But lookup function, VLOOKUP function always look value from left to right. And जो lookup value जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, that should be the first column of your array. Let's see the syntax of VLOOKUP. I'll just pass here VLOOKUP. It takes first lookup value. So our interest is to get the salesperson of this order ID, this certain order ID. So this would be the lookup value. Then next here we have table array. So I'll just select this, and then here I'll pass the table array, and this is our table array. I'll just pass F4. Then next, my requirement is to get the column index, right? Column index of salesperson. So either here we can pass the column index manually. हमने यहाँ से search किया 1, 2. Column index of salesperson is 2. So here I'll pass the column index. Then next is match type. So either this can be approx match or exact match, but my requirement is to get the exact match. So here I'll use false, and that's it. Now our VLOOKUP function is done. I'll just close this, and now with respect to this order ID, here we have the salesperson. हमने देखा 10776 के लिए जो salesperson है, that is Fuller, and here we are getting the same value. Now my requirement is to get the other value 2 for this order ID. मुझे order date भी चाहिए, country चाहिए, and order amount भी चाहिए. Here I'll just use this formula. ये जो यही formula हमने बनाया है, right? इसी को यदि हम right side drag करेंगे, will this work perfectly? या फिर इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा? हेलो. चेंज करना पड़ेगा ना, ये सेल्स पर्सन से ऑर्डर डेट. ओके, और हमें कहीं पे कुछ और नहीं करना पड़ेगा? दैट्स डिफरेंट थिंग, विल डू दैट टू. यानी कि कॉलम इंडेक्स हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट? बट यस सर, कॉलम नंबर्स डालने पड़ेंगे सर. हाँ, और इसके अलावा और क्या हमें इसमें करना पड़ेगा? इस फॉर्मूला के अंदर जो हमने अभी लिखा है, इसमें हमें और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? और विल दिस वर्क परफेक्टली? ये फॉल्स के आगे जो है ना सर नंबर 2, उसमें नंबर 3 जाएगा ना, हाँ, ऑर्डर नंबर डेट. 3. हाँ, नंबर 3 जाएगा, दैट्स फाइन. इसके अलावा और सब सही है या फिर कुछ चेंजेस हमें करना पड़ेगा? सी गाइस, इन एक्सेल, राइट, जब आप एक्सेल में वर्क करते हो, देन रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखो, ऑलवेज सी जो भी रेफरेंस आप पास कर रहे हो. सो रेफरेंस फॉर लुकअप इज दिस वन. हियर वी हैव पास्ड P3. नाउ दिस इज इन रिलेटिव रेफरेंसिंग, राइट? यदि हम इसको राइट साइड ड्रैग करेंगे तो रिलेटिवली इसके कॉलम का इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट? एंड फिर जो लुकअप वैल्यू हम देख रहे हैं, वो लुकअप वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा.
and we'll get nothing. Let's see. अभी हमने इसको ड्रैग किया राइट साइड. नाउ हियर वी आर गेटिंग एन ए वैल्यू. जब वैल्यू का फंक्शन के थ्रू यदि हम कोई वैल्यू सर्च करते हैं और वो वैल्यू यदि हमें नहीं मिलता है इसमें जो एरे है उसके अंदर, देन इट रिटर्न्स अ एन ए एरर, राइट. अब ये जो एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने रेफरेंसिंग सही से नहीं की है अपने फॉर्मूला की, राइट. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लुकअप वैल्यू वाज दिस वन, राइट. ये इसका लुकअप वैल्यू था, ठीक है. सो फॉर दैट इट हैज रिटर्न करेक्ट वैल्यू. बट जैसे हम यहाँ पे आते हैं, नाउ एरे इज सेम, राइट. इसी के अंदर हमें देखना है, बट यहाँ पे इसका लुकअप वैल्यू चेंज हो गया. एंड एज वी नो दैट वी लुकअप फंक्शन में जो जिस भी वैल्यू को आप देख रहे हो, whatever the value for lookup value, right, that should be the first column in your array. अब इसमें क्या है कि फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकेंड कॉलम है. सो दैट्स वाई यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया इन्हें, राइट. यदि इसी को हम चेंज कर देंगे, बी कर देंगे, देन दिस विल गिव यू आंसर, राइट. अब इसने क्या किया, ऑर्डर डेट रिटर्न कर दिया. इसके अगेंस्ट जो ऑर्डर डेट था वो रिटर्न कर देगा आपको. बट व्हाट आई डोंट वांट दिस. हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी रिफरेंसिंग सही करनी है, सो दैट जब हम इसको राइट साइड ड्रैग करें तो ये एन जो एरर आ रहा है वो ना आए, राइट. सो फॉर दैट हमें इसका क्या करना चाहिए, रो फिक्स करना होगा या कॉलम फिक्स करना होगा. ये जो P3 है इसका हमें रो फिक्स करना चाहिए या कॉलम फिक्स करना चाहिए. कॉलम ना सर. Yes. So what we want is single column है P, right? And the same would be populated, would be moved in multiple columns. So हम चाहते हैं कि जब भी ये इस तरह मूव हो तो इसके कॉलम का इंडेक्स चेंज ना हो. So for that here we will fix its column. And जो P है उसके ठीक पहले हम डॉलर साइन इंसर्ट कर देंगे. And that's it. Now we are done. अब हम इसको राइट साइड मूव करेंगे, then we'll get the same answer, fuller, because lookup order lookup value is same, right, for all. And हमने इंडेक्स भी यहाँ पे मैन्युअली जो पास किया था 2, दैट इज आल्सो फॉर ऑल. अब हमें यदि ऑर्डर डेट चाहिए देन फिर यहाँ पे हम जाएंगे, इसका इंडेक्स देखेंगे एंड देन विल जस्ट चेंज दिस वैल्यू मैनुअली. तो दिस इज अगेन अ मैनुअल, वेरी मैनुअल टास्क. यहाँ पे जाएंगे देन विल चेंज इट्स इंडेक्स एंड देन हियर वी हैव द वैल्यू. फिर यहाँ पे जाएंगे एंड देन विल चेंज इट्स इंडेक्स, राइट, and then we'll get the value. So what we want, instead of changing the column index manually, what I want, हमें कुछ ऐसा मिल जाए, right, so that ये डायनामिकली को कॉलम है, कॉलम नेम के बेसिस पे सर्च करे एंड कॉलम इंडेक्स हमें रिटर्न कर दे, राइट. अभी क्या है कि हमने मैनुअली तो यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, बट सपोज इनका ऑर्डर चेंज हो गया, राइट. अभी यहाँ पे वैल्यू है एंड नाउ अब इसका ऑर्डर चेंज हो गया एंड यहाँ पे कॉलम हेडर यहाँ पे आ गया इस तरीके से, राइट. अब तो यहाँ पे जो वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है दैट इज नॉट अलाइन विद कॉलम, राइट. यहाँ पे कंट्री है, हियर वी हैव ऑर्डर अमाउंट, हियर वी हैव सेल्स पर्सन, हियर वी हैव ऑर्डर डेट. अब तो ये अलाइन नहीं है ना, फिर से हमें कॉलम इंडेक्सेस का मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी मैनुअल एफर्ट, राइट. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक फंक्शन लर्न किया है, दैट इज मैच फंक्शन. मैच फंक्शन क्या करता है, लुकअप वैल्यू के बेसिस पे सर्टेन आइटम का रिलेटिव पोजीशन बताता है, राइट. दैट इज कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स एक सर्टेन आइटम का हमें रिटर्न करता है. सो व्हाट वील डू, हियर वील राइट अ फॉर्मूला, राइट, right, use the same VLOOKUP function to create dynamic VLOOKUP so that हमें बार बार फॉर्मूला के अंदर जाके चेंज ना करना पड़े. Let's see how we can do that. I'll just use VLOOKUP, then I'll pass lookup value. अब इसमें हम इसका कॉलम फिक्स कर देंगे. I'll just fix its column, then I'll pass the array. So here we have the array. Also I'll fix this array too. Then
Next, our requirement is to get the column index. अब column index निकालने के लिए here we'll use match function. I'll use match function, then I'll pass this as a lookup value, because हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो header पे जो है value उसका हमें column index dynamically मिल जाए. एंड बिकॉज इसी फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करेंगे, मल्टीपल रोज में पॉपुलेट करवाएंगे, एंड हमारा जो लुकअप वैल्यू है दैट इज इन सिंगल रो. सो फॉर दैट हियर विल फिक्स इट्स रो. देन आई जस्ट गो एंड दिस इज योर लुकअप एरे, यानी कि हमें कॉलम इंडेक्सिंग लेना है. सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी द एरे. आई जस्ट प्रेस F4, देन अगेन 0, एंड नेक्स्ट last parameter of VLOOKUP function is match type, and that is either we can use true or false, but इस केस में हमें exact match चाहिए. So that's why here we'll use false. यहाँ पे false के जगह पे हम 0 भी लिख सकते हैं. And then that's it. Now we are done with the dynamic VLOOKUP. अब हम इसी VLOOKUP फॉर्मूला को जो हमने बनाया है, I'll just drag this right. अभी हमें कहीं कोई फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है. And then I'll just drag this down and this will work perfectly. अब हमने क्या किया, ये जो कॉलम है उसको हमने फिर से स्वैप कर दिया. I'll just copy this and I'll paste here. अब देखो जैसे हमने कॉलम चेंज किया यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया. If I'll just change country here, right? जैसे हमने यहाँ पे कंट्री डाला, now here we can see the country. But जो पहले हमने मैनुअल VLOOKUP फंक्शन का यूज किया था वहां पे आप देख रहे हो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो कॉलम इंडेक्स था दैट वी हैड पास्ड मैनुअली. हार्ड कोडेड वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया था, दैट वाज नॉट डायनेमिक, राइट? नाउ अगेन सी द सिंटैक्स ऑफ VLOOKUP, that is VLOOKUP, then first it takes lookup value, so this is your lookup value. Then next it takes table array, so जहां से हमें डेटा को पिक करना है we'll just pass the entire data as table array. यदि हमें मल्टीपल रोज और कॉलम में पॉपुलेट करवाना हो then always fix the table array. Then next it takes column index. अब कॉलम इंडेक्स यदि हमारे यहाँ पे रो हेडर है उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए, सो वील यूज हियर मैच फंक्शन एंड देन आई विल पास दिस एज ए लुकअप वैल्यू. देन आई विल गेट दिस एज ए array. Then again I press F4, then 0, and here we are done, right? अब यहाँ पे वैल्यू हमें NA आ रहा है बिकॉज जो हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स के लिए वैल्यू पास किया है दैट इज ब्लैंक. सो व्हाट आई वांट, यूजर के चॉइस पे, राइट, आई जस्ट वांटेड टू पॉपुलेट द वैल्यू. आई यूज द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन. आई गो टू डेटा वैलिडेशन, देन हियर आई यूज द लिस्ट वैलिडेशन, देन आई pass the different columns available in this. So I'll just pass this as a list. I'll click OK and that's it. So here we have different list. जैसे हमने यहाँ पे sales person pass किया, here we are getting the value for sales person against this order ID, right? Again, if I just change this country, then here we'll get the country for against this order ID. And again here, if we'll change the order date, then here we'll get the order date against this this order ID. Now here we can see that order date जो है formatted नहीं है. So for that, I'll just press Ctrl and 1, then go to custom, and here we'll format this as normal. And YY. If you just wanted to, only month name and full year, then here you can pass this, right? अब यहाँ पे order date है. If I just change this to country, then here we have country. If I just change salesperson, then salesperson, and order amount, then here we have order amount. So in this way, even we can use match and VLOOKUP function together to create dynamic VLOOKUP, right?
and here using this formula we can get value for any column available in our data set. Clear है यहाँ तक? Any doubt? Sir, how can you use a multiple column? Multiple? Sir, suppose just 1, 2, 3, 4 like VLOOKUP function. 1 2 3 4 VLOOKUP function. सर सपोज ये ऑर्डर आईडी है, हाँ जैसे हाँ सेल पर्सन है, कंट्री नेम है, वो मैच फंक्शन से हो गया। हाँ हाँ। ऐसे वीलुकअप फंक्शन से भी हो जाएगा सर कि मैच फंक्शन जरूरी है इसमें? मैच फंक्शन सॉरी सिंपल VLOOKUP से भी हो गया जाएगा। यहाँ पे देखो जो सबसे पहले हमने किया था वो उसमें हमने कॉलम इंडेक्स मैनुअली डाला था, बट जैसे ही इसका कॉलम का आपने ऊपर से चेंज कर दिया, राइट, नीचे के जो वैल्यू है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो गए, बट ऊपर जो था दैट वाज नॉट डायनामिक। सो वहां पे जाके फिर अगेन आपको इसका इंडेक्स देखना पड़ेगा जो उसके अगेंस्ट वैल्यू है, राइट, कॉलम का जो इंडेक्स है वो देखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू चेंज दिस। सो इन दिस फॉर्मूला सी हियर, यहाँ पे सही आ रहा है बिकॉज सेल्स पर्सन का कॉलम इंडेक्स इज 2, बट यहाँ पे कंट्री आ रहा है, कंट्री के अगेंस्ट हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 3 डाला है, बट इसमें हम जाते हैं तो कंट्री इज एट 4th पोजीशन, राइट। सो यहाँ पे जाके आपको VLOOKUP फॉर्मूला में एंड एक कॉलम इंडेक्स जो है उसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल वैल्यू जो कॉलम इंडेक्स आ रहा है, राइट, उसी को हम ऑटोमेट कर रहे हैं विद VLOOKUP फंक्शन। जब हम मैच के साथ VLOOKUP फंक्शन का यूज कर रहे हैं देन वी आर not thinking about or manually we are not extracting manually the column index of these header, right। ये जो वैल्यूज हैं इसके हम मैनुअली जाके हम उसका कॉलम इंडेक्स नहीं देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है ये जो हेडर है उसके अंदर, राइट। बट यदि आप मैच फंक्शन नहीं यूज करोगे सो इन दैट केस यू नीड टू सी इट्स कॉलम इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पे जो हमने किया है दैट इज मैनुअली ही हमने यहाँ पे डाला है वैल्यू, यहाँ पे मैच फंक्शन हमने यूज नहीं किया, दिस इज वेरी मैनुअल वन। अब यहाँ पे देखो सेल्स पर्सन, यहाँ पे कॉलम नेम इज सेल्स पर्सन, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, कंट्री आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आप जाओगे and यहाँ पे देखोगे कि सेल्स पर्सन का कॉलम इंडेक्स क्या है, सो फ्रॉम हियर वील स्टार्ट काउंटिंग 1 and 2, सो दिस इज हियर, सो हियर वी नीड टू चेंज द वैल्यू एज 2 एंड इस तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट वैल्यू, राइट। अगेन हियर वी आर गेटिंग द अमाउंट, बट यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डर डेट है, राइट। सो फॉर दैट ऑल्सो what we'll do, we'll see 1 2 3 is the, so here we'll just change 3। सो इस तरीके से भी आप VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आइदर यू कैन जस्ट पास कॉलम इंडेक्स मैनुअली, खुद से जाओ काउंट करो स्टार्ट जो आपका लुकअप वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू पोजीशन है उससे कितने नंबर पे आपका कॉलम इंडेक्स आ रहा है एंड देन अपडेट दैट, राइट। बट दैट इज वेरी मैनुअल वन, दैट इज नॉट डायनामिक VLOOKUP, राइट। नेक्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग VLOOKUP इज, हमने यहाँ पे आईडी है, now what I want, I just wanted to populate value for these items, right। or let me just move this somewhere else in other seat। हमने इसी आईडी को पिक किया and then here I am in other seat, right। what I want, I just wanted to populate value against this, so I'll copy this। हमारे पास only order ID है, इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है, that is in other seat। so I just wanted to populate value against this, I'll just go and I'll use VLOOKUP function। हमने अब VLOOKUP function यूज किया, then lookup value is this one, I'll go to table array, so table array is this one, I'll just pass the entire table array here, I press F4 VLOOKUP lookup value, then I'll go to table array, I'll select the entire data set, then I'll press F4 right here to fix this, then next column index। अब यहाँ पे column index के लिए what we can do,
we'll just update the column index value here, right? And then I'll pass the next value, that is 0. And that's it. Now we are done. ये जो value आ रहा है, that is, here we are getting a value error because यहाँ पे हमने column index में कोई भी value populate नहीं किया है. So for salesperson, column index is 2. For order date, column index is 3. For country, column index is 4. For order amount, column index is 5, and that's it. Now we are done. अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूला का यूज करके we can even populate values without using match function, because हमने हार्ड कोडेड वैल्यू ऑलरेडी जो जितने भी कॉलम्स थे उसके ऊपर हमने पास कर दिया है एज ए कॉलम इंडेक्स, राइट? अभी जो फॉर्मूला हमने बनाया है, बिकॉज वील हैव टू पॉपुलेट दिस फॉर्मूला इन मल्टीपल कॉलम्स, सो फॉर दैट जो lookup value, and lookup value is in single column, so we'll fix its first column. I'll just insert $sign just before the column part. Then next, ये वाला जो है, we just want that इसका column का index change हो but row का index change ना हो, because the column index is in single row. So for that, here we'll fix its row part. For that, I'll press F4 2 times, and that's it. Now we are done. अब इसी को हम right side move करेंगे, Control R, and then I'll just drag this down, and here we have the dynamic value populated. यदि आप match function use नहीं करना चाहते हो VLOOKUP के साथ, then you can use this technique, and using this technique even you can populate the value in single formula, right? So Excel हम learn इसीलिए करते हैं so that we can minimize our effort. जो भी formula हम learn करेंगे, we'll try to write single formula, and उसी के को use करके we can drive result for all the columns, right? उसी को हम fill करेंगे multiple columns में, multiple rows में, and then we'll get the corresponding value in this way, right? So this is also a way to get value populated. Now let's move to next part, and अभी हमने VLOOKUP function को देखा, right? As we know that VLOOKUP function is always looks value from left to right. Right से left की तरफ value को search नहीं करता है, right? So what I want, my requirement is to get value from left to राइट. हमने क्या किया, यहाँ पे एक रो आईडी इंसर्ट किया, राइट? रो आईडी, एंड इस रो आईडी के बेसिस पे विल हैव टू गेट द ऑर्डर आईडी. सो रो आईडी इज हियर. I'll just write here a number 1001, right? And then I'll increase this by 1. So here we have रो आईडी, एंड इन ये जो डिफरेंट रो आईडीज है, इसके बेसिस पे हमें ऑर्डर आईडी पॉपुलेट करना है. आई जस्ट कॉपी दिस रो आईडी, सम वैल्यू ओनली, एंड इसी के बेसिस पे हमें डिफरेंट वैल्यूज पॉपुलेट करवाने हैं. सो हियर वी हैव रो आईडी, राइट? एंड इन दिस, एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए ऑर्डर आईडी, राइट? But condition is that here we'll have to use the VLOOKUP function, right? But as we know that VLOOKUP function क्या करता है, always look value from left to right, right से left की तरफ ये values को search नहीं करता है. This is limitation of VLOOKUP function, right? यदि आपसे पूछे कोई इस तरीके से, तो would you be able to do this? हम एक बार ट्राई करें VLOOKUP function का यूज करके, क्या ऐसा कर पाएंगे हम? लेट्स सी, VLOOKUP, देन लुकअप फंक्शन में इसको हम पास करेंगे, देन आई विल गो टू टेबल एरे. तो टेबल एरे इज दिस वन. अब यहाँ पे बिकॉज एज वी नो दैट VLOOKUP में जो भी लुकअप वैल्यू होगा दैट शुड बी द फर्स्ट कॉलम इन टेबल एरे, बट ये क्या है, लास्ट कॉलम है, राइट? यदि हम इसको पास करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू अवेलेबल है
उसी से रेफरेंस करेगा। यदि उसको में मिलेगा देन दैट्स फाइन, अदरवाइज ये आउटपुट आपको नहीं देगा। हियर यू विल गेट द एन एरर, राइट। ये सर्च नहीं कर रहा है, वेयर एज दिस वैल्यू इज अवेलेबल इन दिस डेटा सेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस वैल्यू इज अवेलेबल हियर, राइट। अवेलेबल है बट फिर भी ये रिटर्न नहीं कर रहा है। सो बिकॉज दिस इज लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप ऑलवेज लुक वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। बट फिर भी आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ गया, राइट, बिकॉज इंटरव्यू वांट्स टू सी योर लॉजिक, राइट, और ऑल्सो ही वांटेड टू नो दैट वेदर यू नो सम एडवांस फंक्शंस और नॉट, राइट। यहाँ पे अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये यहाँ पे ऑर्डर आईडी हमें पॉपुलेट करना है बट यूजिंग वी लुकअप। प्रीवियस क्लास में हमने एक फंक्शन लर्न किया था एंड दैट फंक्शन वाज चूज फंक्शन, राइट। चूज फंक्शन क्या करता है, एक सर्टेन इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यूज को पॉपुलेट करता है। सो व्हाट आई विल डू, हियर आई विल यूज array, देन आई विल से 2 एंड देन आई विल से 1। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं, one is row id and another one is order id. So what I want that ये जो row id है that would become the first column and order id है that would become the second column in this list, right? So for that, here I'll select order id as first column and then row id as second column, and that's it. जब हमने ये यूज किया देन हियर वी कैन सी दैट रो आईडी है वो लेफ्ट में आ गया एंड ऑर्डर आईडी है वो राइट में आ गया। यदि हम इस चूज फंक्शन के आउटपुट को VLOOKUP में एज टेबल एरे पास करेंगे देन आई थिंक वी वुड बी एबल टू गेट द ऑर्डर आईडी अगेंस्ट दिस रो आईडी। सो फॉर दैट here I'm going to do the same thing. I'll use VLOOKUP, then next here I'll use choose function and यहाँ पे हम array function का यूज करेंगे। here I'll pass 2 and 1. it means that जो second value है, second position पे जो value है, I'm just wanted to populate that first, right, and then first index पे जो value है that I wanted to populate second. I'll go in this data set and this is order id is at first index and next row id is at second index and that's it. Then column index के जगह पे हमारी requirement है order id pick करना, so here we'll pass 2, then here we'll pass 0 and that's it. Now we are done. I'll just and enter. अब इस रो आईडी के अगेंस्ट हमें ऑर्डर आईडी मिल गया, right? So in this way, using with the help of other function, right, or with the help of output of other function, we can even overcome the limitation of certain function. जैसे अभी हमने देखा कि VLOOKUP फंक्शन का एक लिमिटेशन है एंड उस फंक्शन की लिमिटेशन को हमने राइट रिमूव किया, राइट ओवरकम किया यूजिंग चूज फंक्शन, राइट। चूज फंक्शन का यूज करके हमने इसके कॉलम का जो पोजीशन था उसको इंटरचेंज कर दिया एंड देन हियर वी हैव a value. Now if I just drag this down then still I'll not get the correct answer. So for that we need to fix it first. जितने भी रेंज हमने इसमें यूज किए हैं I'll need to fix that first. So here we have the value. I'll just fix this also and then that's it. Now I'll drag this down. जैसे आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे here you have the all the order id against these row id. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? VLOOKUP फंक्शन क्लियर हो गया यस सर। एंड ऑल्सो इट्स लिमिटेशन, राइट। एंड ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जब आप स्पेशली यदि किसी एनालिटिक्स रोल पे जाओगे, even for Power BI or for Tableau, right? So this kind of question can be asked.
right? So that they just wanted to know your knowledge of different functions, and also just they wanted to know that whether you are able to use output of a function inside other function or not to automate your task, right? Now let's move to next part. Similar to VLOOKUP, VLOOKUP is vertical lookup function. Similar to VLOOKUP, in Excel we have other function also, and that is HLOOKUP, right? सर HLOOKUप is सर मेरे को डाउट थोड़ा सा है। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो अरे वाला फंक्शन बताया ना सर VLOOKUP में, हम्म। तो सर उसका थोड़ा मेरे को अभी समझ में नहीं है, थोड़ा समझ तो आया लेकिन थोड़ा सा वो तेरे को दोबारा बता देंगे सर। हाँ हाँ बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। बस वो इसमें क्या है, अभी हमने जो ये एरे वाला यूज किया है, ये सो आवाज थोड़ा नहीं आ रहा था ना तो समझ में आया आवाज, हाँ अब हाँ वो सोच में यही पे ओके नो प्रॉब्लम, राइट। पता नहीं सो मेरा सिस्टम का है कि आपका है। ये आवाज तो सबको प्रॉपर जा रही है, राइट गाइस? सबको प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। यस। सो लेट्स सी एंड कंसंट्रेट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, चूज फंक्शन का यूज किया है, राइट? इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने चूज फंक्शन लर्न किया था, एंड हमने देखा था कि चूज फंक्शन एक सर्टेन इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू को पॉपुलेट करता है, राइट? सेलेक्ट करता है। सो यदि हमें एक्सेल के अंदर मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स में वैल्यू पॉपुलेट करने हो, सो फॉर दैट वी यूज एरे ऑप्शन, राइट? एंड जस्ट टू यूज एरे वी फर्स्ट स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे दैट विल बी पॉपुलेटेड इन मल्टीपल कॉलम और रोज। सो हियर आई एम जस्ट टाइपिंग 1 एंड कॉमा 2। यदि हमने कॉमा यहाँ पे पास किया, इट मीन्स दैट दिस विल पॉपुलेट वैल्यू इन मल्टीपल कॉलम्स। बट यदि हमें वैल्यू मल्टीपल रोज में पॉपुलेट करवाना हो, इन दैट केस कॉमा है उसके जगह पे हम यहाँ पे सेमी कॉलन पास करेंगे, एंड देन दिस विल वर्क परफेक्टली। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे हम चूज फंक्शन के अंदर हम यही एरे एज इंडेक्स पास कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ कॉलम्स एज रिक्वायर्ड फॉर VLOOKUP। हमने यहाँ पे VLOOKUP के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका कॉलम का पोजीशन जो है इंटरचेंज कर दिया है, राइट? हमें रो आईडी के बेसिस पे ऑर्डर आईडी चाहिए था, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे रो आईडी को पहले ले लिया एंड ऑर्डर आईडी को बाद में पॉपुलेट करवा दिया इनसाइड यूजिंग choose function with the help of choose function. So what I'll do here, I'll use VLOOKUP, right? Then for VLOOKUP we'll pass here row ID as a lookup value. Next my requirement is to pass here table array. अब table array के जगह पे, because यहाँ पे जो डेटा है that is not in correct format, right? इसका जो पोजीशन है लुकअप वैल्यू का that is last, but VLOOKUP फंक्शन का लिमिटेशन है that looks value always from left to right, and जो lookup वैल्यू है that should be the first column of VLOOKUP का जो टेबल एरे है उसका, right? So just to make that, right, that this one as first column of table array, we'll use here choose function. हमने यहाँ पे choose function दिया, then choose function के index पे here we'll pass array, and array में हमने पहले पास किया 2, then second पास किया हमने 1, right? It means that इसमें जो choose function के अंदर value 1 पे जो हम पास करेंगे that will be populated, right? That will be populated second as a second column, and value 2 पे जो हम value पास करेंगे that will be populated as first column. So here I'll pass this order ID as value 1 and then row ID as value 2. हमने row ID को as a value 2 यहाँ पे पास कर दिया, and that's it. Now अब हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम पिक किया है, एंड माय रिक्वायरमेंट इज टू टेक द सेकेंड कॉलम। सो कॉलम इंडेक्स के यहाँ पे जगह पे हम यहाँ पे
पास कर देंगे 2, राइट। एंड देन नेक्स्ट वी जस्ट वांटेड टू एग्जैक्ट मैच। सो एग्जैक्ट मैच के जगह पे वी कैन पास 0 और इवन वी कैन पास फॉल्स 2। दोनों केस में दिस विल वर्क परफेक्टली एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इस रो आईडी के अगेंस्ट मिल गया order ID, right? So in this way, even we can use choose function with VLOOKUP to overcome the limitation of VLOOKUP. ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करो, राइट? प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार खुद से लिखोगे, then only this will be yours, right? एंड इवन नॉट ओनली द चूज फंक्शन, और भी दूसरे फंक्शन जो आपने लर्न किए हैं, राइट? इवन ऑफसेट फंक्शन, उसको भी देखो किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउ वी कैन यूज, हाउ वी कैन क्रिएट द डायनामिक नेम रेंजेस, राइट? एंड दैट कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूला। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट lookup function is HLOOKUP function, right? So I'll just pick some more data for HLOOKUP. Let me just take some data. So here we have the data set. I'll just pick this data set. This is a data set, right? And हमने इसी को pick किया है for our example. पहले जो data set था that was vertical one, right? इसके order ID था that was in different rows, single column, different rows. But यहाँ पे जो order ID है that is in multiple columns. Now my requirement is to get the values against these order ID for country, salesperson and order amount 2, similar to जैसे हमने VLOOKUP में पॉपुलेट किया था। ये आपका डेटा सेट है, इस डेटा सेट से हमें यहाँ पे ये जो ऑर्डर आईडी है इसके अगेंस्ट हमें वैल्यू पॉपुलेट करना है। So for that, what we'll do here, we'll use another lookup function, and that is HLOOKUP. Let me just change its month and year, and that's it. Date का format हमने set कर दिया, and that's it. So what we'll have to populate here, country, ये जो order ID इसके against, salesperson, order date and order amount. Here the lookup value is vertically, right? So here we can't use VLOOKUP. Now here we'll have to look horizontal lookup function to get value from top to bottom. यहाँ पे टॉप पे आपका लुकअप वैल्यू है, एंड इसके अगेंस्ट जो नीचे वैल्यू जो है उसको हमें पिक करना है, राइट? सो फॉर दैट हियर वील यूज HLOOKUP. HLOOKUP looks for a value in the top row of a table or array of value and returns the value against that. So here we'll pass HLOOKUP, then lookup value would be this one. इसी order ID के against हमें value populate करवाना है for country. So here this would be the lookup value. Then I'll pass the table array. I'll just pass the table array as this one. हमने इसको entire को table array pass कर दिया. Then I'll press F4 to fix this. Then VLOOKUP के तरह ही now the third parameter is row index. VLOOKUP में हम column index लेते थे. Now here we have row index. So what we want, we just want the data for country. So ऊपर से हम count करेंगे, order ID is 1 and this country is 2. So here row index would be 2. हमने यहाँ पे manually 2 pass किया. Then next match type. So here we just want match should be exact match. So for that here we'll pass either false or 0. हमने यहाँ पे false pass किया and that's it. Now we are done.
अब यहाँ पे वैल्यू मिल गया हमें यूएसए, यानी कि इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट वैल्यू इज कंट्री इज यूएसए। एंड नाउ हमने मैनुअली वैल्यू पास किया एंड देन हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू। अभी ऑर्डर आईडी है दैट इज इन single row, right? And what we want, we just wanted to populate this in multiple row. So first we need to fix its row. Here I'll go and then fix its row and that's it. अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे आपने इसको नीचे ड्रैग किया, here we are getting the same value, right? Why? Because row index हमने यहाँ पे hard coded value पास किया है, right? So that's why here we are getting value, same value. But row index of country is 2, salesperson is here 3, so here we need to pass row index as 3. So instead of passing this manually, what I just want a function that would return row index dynamically, and that function is match function. So what I'll do here, instead of passing value manually, here I'll use match function to get row index for us dynamically. I'll pass here lookup value, first parameter of match function, then this is your lookup array, the second parameter of match function, then here I'll pass F4, then 0, and that's it, right? जो रो इंडेक्स था, रो इंडेक्स के जगह पे हमने मैच फंक्शन का आउटपुट पास कर दिया, एंड दैट्स इट. नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर एंड आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन. अब इसको नीचे की ड्रैग करेंगे, देन दिस विल नॉट वर्क, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, इस रो के लिए तो वर्क कर जाएगा, बट जब हम इसको राइट साइड मूव करेंगे मल्टीपल कॉलम्स में, देन दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज जो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है दैट इज इन सिंगल कॉलम. So for that, here we need to fix its column first. I'll just insert dollar just before the column. Then I'll drag this down and right. And in this way, this will populate the value dynamically. So using HLOOKUP and match together, we can create dynamic HLOOKUP function also. Similar to VLOOKUP, HLOOKUP का भी एक लिमिटेशन है. HLOOKUP की लिमिटेशन ये है कि HLOOKUP always look value from top to bottom, not bottom to top. ठीक है? And also जो lookup value है that should be the first row in table array of HLOOKUP function. यदि किसी और पोजीशन पे ये ऑर्डर आईडी रहता तो इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट हमें ये वैल्यूज नहीं मिल पाते, right? So this is only the limitation of HLOOKUP function. Now let's see if we have any function जो कि हमें वैल्यू कहीं से भी लेकर दे सकता है, right? So that function is index and match function together. Let me just pick some data for index and match. Okay, so here we have some data set, a big data set. I'll just copy this in this sheet, right? And हम यहाँ पे use करेंगे index and match function to populate values, to get value. So here we have order ID, some order ID, and what I just wanted to populate row ID, right? Let me just copy the column name also. Row ID, control के साथ we'll select the other column, right? These columns, and इनको select करने के बाद we'll just copy this. Control के साथ I'm just selecting the multiple columns, right? हमने इसको copy किया and then I'll paste this here. Now here these columns. अब हमें क्या करना है? Using index and index, using a function, we'll have to populate value against these columns, right? So for that, here
will use index and match together. VLOOKUP फंक्शन का यदि हम यूज करेंगे then we would not be able to get row ID without using choose function, right? So let's see how index function work. अभी हमने यहाँ पे लिखा index, right? Returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row or column, right? Let's see the syntax of index. Index and then array, row number, column number, right? Suppose हमें इसके अंदर एक certain value है, certain index से यदि value pick करना हो, then we can pick that. I'll just pass this as a array, right? And हमने इसमें बोला third 3, right? So this will return you the value available on third index, that is order ID, right? So instead of passing this as a manual value, right, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं match function को, and in using match function we can get the certain value dynamically using index function. Index function क्या करता है, as per a specified row or column, row and column, it returns you the value of available on that certain position, right? So index function भी, this is also a lookup function. अभी हमने सिंगल वैल्यू पास किया था, सिंगल एरे सेलेक्ट किया था, सिंगल रो सेलेक्ट किया था, राइट? सो दैट्स व्हाई हियर इट इज, हमने एक ही वैल्यू पास किया, देन इट वर्क्स. बट इसका सिंटेक्स देखोगे, देन हियर दिस इज एरे, देन रो नंबर एंड कॉलम नंबर. दिस इज ऑप्शनल वन ओनली व्हेन वी आर सिलेक्टिंग वन डायमेंशनल डेटा. बट जब मल्टीपल डायमेंशनल डेटा सिलेक्ट करोगे, जब रो एंड कॉलम दोनों सिलेक्ट करोगे, in that case you need to pass the row and column index both. I'll just pass here index, then I'll pass select the row and column both, right? हमने rows को भी select किया and column को भी select किया. Then here if I just only pass the two value, then this will not work. This will return you a ref error because it requires column 2. So if I'll just pass here row 2 and column 1, so this will return you value of available in this row 2, this is second row and first column. So in this way, using index function, even we can get value returned. But यहाँ पे जो हम manual value row and column index pass करते हैं, here we'll use match function to return that index dynamically. अब हम ये जो डेटा सेट है इसे हमें फिल करना है, एंड फॉर दैट हियर विल यूज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन टुगेदर. आई यूज इंडेक्स, देन इंडेक्स फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर दैट इज एरे. आई जस्ट गो टू डेटा, दिस इज योर एरे. आई जस्ट select the entire data set, then I'll press F4. Next, here next requirement is to get the row number, that is row index. So for that here we'll use match function. We'll use here match function, and then for match lookup value would be order ID. So here I'll pass the order ID, and then I'll also freeze its column because इसे हम multiple columns में populate करना है. Then I'll go to and I'll pass the lookup array. Lookup array would be this one, यानी कि इसी कॉलम में हमें ये देखना है ये सारे के सारे order ID. So I'll press F4 to fix this. Then match type would be exact match, and that's it. Now next we want column index. So for column index again here we'll use match function, and for column lookup value would be the column. I'll press F4 and I'll first fix its column, right? Sorry, row, so that ये जब नीचे हम इसे ड्रैग करें then इसके रो का इंडेक्स चेंज ना हो. Then I'll go and then I'll pass here the entire array here, and then I press F4 and then 0, and that's it. So inside index हमने क्या किया,
रो इंडेक्स निकाला डायनेमिकली एंड देन कॉलम इंडेक्स डायनेमिकली निकाला एंड देन दिस विल रिटर्न यू द वैल्यू. अभी रो आईडी इज लेफ्ट टू दिस ऑर्डर आईडी, राइट, बट स्टिल इसने हमें वैल्यू दे दिया. सो ऑर्डर आईडी इज लेफ्ट टू दिस रो आईडी, बट फिर भी हमने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज करके यहाँ पे जो वैल्यू था इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो रो आईडी था, हियर वी कैन गेट दैट. आई जस्ट ड्रैग दिस राइट एंड हियर वी हैव द डायनेमिक वैल्यू. इसी को नीचे की तरफ ड्रैग करो and here we have the values populated correctly, right? So in this way, using index and match function together, even we can get value from anywhere. जो limitation hlookup and vlookup function का था, right, we can overcome the same using index function, index and match function together. इन दोनों function का use करके हम उसका जो limitation है we can overcome, right? So that's it for today, guys. Okay, Hussein, आपका एक query था. Now you can ask your query now. सर वो लास्ट वाला असाइनमेंट Last वाला जो हमारा assignment था, that was for and guys, ये जो lookup function है इसको आप practice करोगे then only this will more clear, right? सर ये सेकंड क्वेश्चन. Second question is that use advanced filter, right, to find the unique salesperson and country name. अब एक चीज बताओ, आपने इसको ट्राई किया हाँ एडवांस किया. फिल्टर? सो सर ये सेकंड वाला बता दीजिए सर, ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना सिर्फ है ये. कॉलम ही आ रहा है सर, ऊपर का नीचे का कोई डेटा ही नहीं आ रहा. एडवांस फिल्टर का आपने यूज किया, राइट, यूजिंग एडवांस फिल्टर एंड देन यहाँ पे कॉलम आ गया आपके इस पे, यहाँ पे वैल्यू ये कॉलम पीले थोड़ी ना है क्या ये तो. फ्रॉम डेटा वन, राइट. सो व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे हम जाएंगे, राइट. सो दिस इज योर डेटा वन. अब हमें यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज करना है, राइट. एडवांस फिल्टर का यूज करके हमें यूनिक सेल्स पर्सन एंड यूनिक सेल्स पर्सन एंड कंट्री नेम हमें पिक करना है, राइट. सो अब इस केस में हम जाएंगे, आई जस्ट गो टू डेटा, राइट. इस डेटा सेट में हमें एडवांस फिल्टर का यूज कर, एडवांस फिल्टर जब आप जाते हो यूज करते हो, आई जस्ट गो एंड देन हियर वी हैव अ एडवांस फिल्टर ऑप्शन, राइट. हमने सेलेक्ट किया. अब इसमें से हमें यदि यूनिक डेटा पिक करना हो, राइट, यूनिक डेटा पिक करना ओनली, देन व्हाट विल डू, हियर विल यूज यूनिक. एंड इसको यदि हमें सर्टेन पोजीशन पे कॉपी करवाना हो, यदि इसी सीट में कॉपी करवाना हो, then this will work perfectly. But if you want this to populate in other seat, इसमें आओगे, यहाँ पे आओगे, right, and if you try to populate this, then this will give you this error. You can only copy or filter data to the active seat only, right. सब पे आप इसको populate नहीं करवा सकते. But what we can do, even using advanced filter, we can get output of these two, assignment, country and salesperson है. So what I'll do, I'll just go here and select the country, right, and then select the salesperson. ये दो column है, I'll select this, right, and then I'll go and apply the advanced filter here, right. हमें इन दोनों का ही सिर्फ unique value चाहिए. I'll just select and apply the advanced filter, right. यहाँ पे जो E तक select कर रहा है, I'll just change this to up to B because हमें ये दो है, दो कॉलम का ही हमें सिर्फ चाहिए. Then criteria है, I'll just remove the criteria and then I'll go to unique. I'll click copy and copy हम यहाँ पे करवा लेते हैं इसको somewhere here, right, and then that's it. हमने यहाँ पे यूनिक पे चेक किया,
दो कॉलम ओनली सिलेक्ट किया है इसमें, एंड देन आई विल क्लिक ओके, एंड हियर वी हैव द वैल्यू। कंट्री एंड सेल्स पर्सन जो यूनिक है, हियर वी हैव द आउटपुट। सो इन दिस वे आपको एडवांस फंक्शन का एडवांस फिल्टर फंक्शन का यूज करके एंड देन वैल्यू पॉपुलेट करवाना था। सर लिमिटेशन ऑफ एडवांस फंक्शन इज, वो जब भी पॉपुलेट करेगा वैल्यू या कॉपी करोगे तो एक्टिव सीट में, उसका यदि हम किसी और सीट में रेफरेंस पास करेंगे देन दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, सर एक क्वेश्चन बोलिए। नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4। 4, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है find the data sorry, from the data find out the country on range A37 and sum on range count on range A37 and sum on range C47 for order amount for USA where year is 2003। अब इसमें आपने कैसे यूज किया, समझ इसके नहीं लिए तो आया। हमने जो इसमें हमने लगाया हुआ लॉजिक, यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट। ईयर 2000 होगा तो उस जो वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन, राइट, और इक्वल, जो डेट होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फर्स्ट जैन 2003, राइट। यही होगा एक क्राइटेरिया, ये हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया वुड बी वैल्यू शुड बी लेस देन फर्स्ट जैन 2004, राइट। तो ये जो सारा डेटा, ये जो दो डेट्स हैं, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा दैट वुड बी फॉर ईयर 2003, राइट। ओके। अब इसी को आपको काउंट इफ्स के अंदर एंड सम इफ्स के अंदर अप्लाई करना है, राइट, एंड देन हियर यू विल गेट द आउटपुट फॉर दैट। अभी हमने यहाँ पे काउंट इफ्स लगाया हुआ है। सो काउंट इफ्स में आप देखोगे यहाँ पे हियर वी हैव टू क्राइटेरिया। हमने डेटा 1 में गए, फर्स्ट इनपुट इट काउंट इफ्स टेक्स द क्राइटेरिया रेंज। सो क्राइटेरिया रेंज में हमने क्राइटेरिया रेंज पास कर दिया। देन आवर रिक्वायरमेंट इज टू गेट द कंट्री फॉर डेटा फॉर यूएसए। सो हियर वी हैव द यूएसए, हमने यहाँ पे पास किया। देन डेटा 1, हियर वी हैव द रेंज, एंड यहाँ पे दो क्राइटेरिया हम पास करें। दिस इज योर डेट 1। फर्स्ट डेट इज, जो एक सर्टेन डेट है उससे वैल्यू शुड बी लेस, एंड एक सर्टेन डेट है उससे वैल्यू शुड बी ग्रेटर, एंड इसी के बीच में हमें so either you can use the value that is greater than 31st December 02, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, the value should be greater than or equal to January, right, 1st Jan and here we can pass value as 03। जो वहां पे फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू आपको पास करना होगा, देन ओनली दिस विल वर्क, राइट। अभी हम इसी को क्या करेंगे, हियर वी कैन पास यूज द सेम क्राइटेरिया इन सम यूजिंग सम इफ्स, राइट। देन फर्स्ट इसका आउटपुट, फर्स्ट पैरामीटर इज सम रेंज। आई जस्ट गो टू डेटा 1 में जाएंगे एंड देन हियर वी पास द सम रेंज फर्स्ट। हमने इसको पास कर दिया, दिस इज द सम रेंज। जब क्राइटेरिया ट्रू होगी देन वी वांट आउटपुट ऑफ दिस। देन नेक्स्ट हियर वी हैव क्राइटेरिया रेंज 1। सो यूएसए के लिए हमें वैल्यू चाहिए, सो वी विल सेलेक्ट दिस एज ए क्राइटेरिया रेंज 1। then also here we'll pass the criteria is for USA। so यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा प्लेस होल्डर नहीं है, so that's why here we'll pass this as a hard coded value USA, and that's because this is a string value, so that's why हम इसको डबल कोट्स में पास कर रहे हैं। then next criteria range is this one। अब इसमें हमें ये सर्च करना है कि इसके अंदर जो वैल्यू है, ईयर है, that should be 2003। so for that here we'll first fix it, then we'll type here the value should be greater than or equal to 01 Jan, right, and
0 3, right? And that's it. Then next criteria range would be this one again, and I'll just pass this F4, and then again here we'll say the value should be less than 01 Jan 04, and that's it. Now we are done. अब इसको हम क्लोज करेंगे एंड देन हियर विल गेट द आउट. यहाँ पे हमें सम मिल जाएगा एज पर दिस. जो कंडीशन हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आउटपुट, राइट. इसमें लॉजिक यही था. ये 2003 के लिए जो दो डेट्स थे उस डेट्स को आपको यूजिंग काउंट इफ्स एंड सम इफ फंक्शन यहाँ पे कॉपरेट करवाना था. सर ये राइट. काउंट इफ और सम इफ का डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? समझ नहीं आता कौन सा कब यूज करना. काउंट इफ जब आपको नंबर काउंट करना हो, राइट. टोटल आइटम कितने हैं, लाइन आइटम कितने हैं, राइट. ओके. जब हमें सर्टेन वैल्यू को सम करना हो, जैसे कि इस वाले डेटा में आप आओगे तो इसमें ये था कि 2003 के लिए यूएसए के लिए कितने आइटम हैं, राइट, कितने लाइन आइटम हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे गए और हियर विल अप्लाई अ फिल्टर, राइट, जो वो फॉर्मूला के थ्रू हम कर रहे हैं यूएसए. देन ऑर्डर इसमें जाएंगे एंड देन हियर विल पिक 2003, राइट. एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर दिस इज काउंट. जो यहाँ पे काउंट रिटर्न हो रहा है दैट इज द आउटपुट ऑफ काउंट इफ फंक्शन. काउंट इफ फंक्शन इज अ काउंटिंग फंक्शन, राइट. बट हमें यदि ये जो क्राइटेरिया है इसी के बेसिस पे हमें सम चाहिए, ऑर्डर अमाउंट, टोटल ऑर्डर अमाउंट देखना है कि ये जो क्राइटेरिया है यानी 2003 के लिए यूएसए के लिए ऑर्डर अमाउंट क्या है. सो फॉर दैट हियर विल यूज सम इफ. जब इसको सिलेक्ट करोगे देन हियर यू विल गेट द सम ऑफ दैट एज पर दिस क्राइटेरिया, राइट. एंड ये हमें यहाँ पे दिख रहा है और यही हमें इसी का आउटपुट मिला है हमें यूजिंग सम इफ फंक्शन. जब भी हमें एग्रीगेटेड वैल्यू चाहिए, सम चाहिए, देन विल यूज सम इफ फंक्शन. जैसे कि यहाँ पे सम ऑन रेंज, काउंट भी चाहिए सम भी चाहिए. काउंट के लिए विल यूज काउंट इफ और काउंट इफ्स. सम के लिए विल यूज सम इफ और सम इफ्स. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन ये यूज. फॉर्मूला लिखने के लिए ये फॉर्मूला इंसर्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, right. Even you can use that too. Okay. So that's it for today. Let's connect in next class, and in next class we will be just exploring the pivot tables, right, and also we learn how